let you see, you have a book in your syllabus, The Merchant of Venice. Simply you must know it is a tragicomedy. Why it is a tragicomedy? When you will know the story, after that you will understand why it is called a tragicomedy. It is really a beautiful drama of William Shakespeare. So many things are said about William Shakespeare. Particularly in the field of comedy, it is said that he has no heroes but heroines. And whenever you will study this book, you will find that he is right, of course. This book is starting in the streets of Venice. Venice is known to you. Mostly you are watching these days on your TV set also. And there the streets are not. On the name of streets, you will find there that water is flowing in the streets. And all the works are going to be done through the small boats. The drama is starting in a street of Venice, where friends of Antonio, whose name are Bassanio, Salanio, Lorenzo, and so on. It means the book can be understood by the prejudice of two classes, by the prejudice of two religions. On one part you will see that Christians are. The names which I have taken, they belong to the Christian category. Rather after it you have to see some Zeus character also. Zeus character means Shylock, Tubal, Jessica. Not other characters, not so many characters are Jews, mostly characters are Christians. And it's also a fact that both these classes have their own prejudices. Let me start the book. Let you see how William Shakespeare is going to start the book. In the starting, the friends of Salarino and Salanio, they are present there. They are discussing with Antonio about the reason of his seriousness. He is saying, in truth, from this sentence, the drama is going to be started. In truth, I know not why I am so sad. It wearies me. You have said it wearies you too. हिंदी भी कर देता हूँ. इन ट्रूथ आई नो नॉट, वास्तव में मैं नहीं जानता. वाई आई एम सो वेरीज, मैं इतना परेशान क्यों हूँ. आई हैव टू नो द रीजन ऑफ इट, मुझे इसका कारण जानना है. तुम लोग भी इससे परेशान हो. सम ऑफ दे आर डिस्कसिंग, Salarino and Salanio. One of the friends says that your mind is tossing upon the great ocean where your ships are going with a large amount of goods. It's a fact. But he is not going to accept this thing. He is saying that he was not worried about his business, about his ships. Then they are going to comment, it means he must be in love.
But Antonio says 5. It means you should feel same. You have to remember they are the friends, so they can talk in this way. थोड़ा सा हिंदी कर देता हूँ. सैलारिनो और सैलानियों के कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा दिमाग चूंकि उछलता रहता है सागर की लहरों पर, जहाँ तुम्हारे बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते रहते हैं सामान को लाद कर, यह स्वाभाविक है कि तुम्हारा दिमाग चिंतित रहता है इन कारणों से. लेकिन एंटोनियो इस बात को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसके मित्र एक और आरोपण करते हैं, देन यू मस्ट बी इन लव. वो कहता 5. शर्म करो, तुमको हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए. मैंने आपसे कहा चूंकि वे मित्र हैं इस तरह की बातें आपस में कर सकते हैं. एक बहुत अच्छी सी बात एंटोनियो के मुंह से शेक्सपियर कहलवाता है, आपको अच्छी लगेगी, सुनिए और समझने की कोशिश करिए. वो कहता है, आई होल्ड द वर्ड बट इज द वर्ड ए स्टेज वेयर एवरी वन मस्ट प्ले पार्ट एंड वेयर माइन इज ए सैड वन. मैं सोचता हूं कि ये संसार है एक रंगमंच, यह है एक स्टेज जहां पर हर आदमी एक रोल अदा करता है और वहां मेरा रोल एक दुखी आदमी का रोल है. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरे नाटक में वो आपको दुखी दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है उसका सेंटेंस है और हमें कुछ सोचने को बाध्य करता है. दूसरी बात है ये ट्रेजी कॉमेडी है. ट्रेजी कॉमेडी होने के कारण थोड़ा सा दुख का पुट, थोड़ा सा सारों का पुट देकर उसने किताब को शुरू किया है. यह भी कहा जाता है कि शेक्सपियर के नाटक जो होते हैं वो उनमें कीनोट छुपा होता है जब वो स्टार्टिंग या ओपनिंग सीन लेता है. इस तरह से उनमें डिस्कशन चल रहा है. उसी समय ग्रेशियानो एक कमेंट करता है. ग्रेशियानो कहता है कि तुम इसलिए गंभीर रहते हो ताकि लोग तुम्हें विद्वान आदमी समझने लगे. ग्रेशियानो देर तक बोलता है. ग्रेशियानो देर तक बोलने वाला व्यक्ति है, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है. उसी समय वहाँ पर लारेंजो और बसानियो प्रवेश करते हैं. बसानियो ज़्यादा गहरा दोस्त है, इसलिए बाकी सारे दोस्त विदा ले लेते हैं. ये आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा. जब आपका कोई स्पेशल दोस्त आ जाता है तो बाकी दोस्त चाहते हैं कि हम चले जाएं और वास्तव में वो वहाँ से चले जाते हैं शाम को मिलने का वादा करके. अब बसानियो और एंटोनियो अकेले रह जाते हैं. दे आर द क्लोज फ्रेंड्स. अब यहाँ पर उनका कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत थोड़ा सा सुनिए और समझिए. अकेले में जब दोनों हो जाते हैं तो एंटोनियो कहता है, व्हाट इज योर सीक्रेट प्लान अबाउट विच यू वांट टू ओपन योर हार्ट. बसानियो सीधे नहीं कहता, बसानियो घुमा कर बोलता है. कहना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है. वो कहता है, इन माई स्कूल डेज आई यूज टू प्ले विद अ bow and arrow. Sometimes I lost an arrow. I used to shoot another arrow in the same direction. अपने बचपन के दिनों में मैं तीर और धनुष से खेला करता था. स्कूल के दिनों में तीर और धनुष से खेला करता था. कभी कभी मेरा एक तीर खो जाया करता था और उसी दिशा में मैं दूसरा तीर चला दिया करता था. कभी कभी मैं दोनों पा लिया करता था. आप जानते हैं इससे समझ में नहीं आ सकता, इससे एंटोनियो समझ नहीं सकता. एंटोनियो कहता है, इन दिस वे बीटिंग अबाउट द बुश डायरेक्टली यू आर चैलेंजिंग टू माई फ्रेंडशिप. अब खोलना पड़ता है वो राज जो उसने छुपा रखा है अपने दिल और दिमाग में. वो कहता है कि देयर इज अ लेडी इन बेलमांट, हर नेम इज पोर्सिया.
शी इज फेयरर देन द वर्ड फेयर। शायद आपकी समझ में आ रहा होगा, वो सुंदर शब्द से भी ज़्यादा सुंदर है। मतलब भर का कह दिया बसानियों ने, और बसानियों कहता है कि आई हैव बीन लुक्ड बाय हर टेंडर लुक्स। वो मुझे नाजुक निगाहों से देखती है। बसानियों को वहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। इसके पहले वो पैसा लिया करता था बसानियों से और खर्चा किया करता था। लेकिन वो ये भी कहता है कि आई डू नॉट कंप्लेन दैट आई हैव स्पेंट ऑल द मनी एंड आई विल नॉट रिड्यूस दिस लॉर्डली स्टाइल ऑफ लिविंग। एज आई लिविंग आई विल रिमेन लिविंग। समस्या ये है कि उस समय एंटोनियो के पास रेडी मनी नहीं है, तैयार पैसा नहीं है। वो कहता है कि तुमको पूरे वेनिस में कहीं पर भी उधार मिल जाए, तुम उधार ले लो और मैं उसे चुका दूंगा, उसकी गारंटी मैं लूँगा। और ये थोड़ा सा वंडरफुल है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कि इतना पैसे वाला आदमी, उसके पास पैसा नहीं है, नगद पैसा नहीं है, केवल 3000 डुकेट्स चाहता था। उस समय आवश्यकता थी केवल 3000 डुकेट्स की। वो 3000 डुकेट्स उसके पास नहीं है, इसलिए बसानियों को अब तलाश करना है पूरे वेनिस में, कहीं भी पैसा मिल जाए तो वो पैसा ले ले, लेकिन उसके लिए गारंटी लेगा एंटोनियो। अब शायद आप इस मित्रता के बंधन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब एक विचित्रता है कि पैसा किसी क्रिश्चियन के पास मिलता नहीं। मिलते मिलते पैसा मिलता है तो शेक्सपियर ने दिखाया है कि पैसा है तो शायलाक के पास। शायलाक जीव है, यहूदी है। शायलाक और एंटोनियो में व्यापारिक दुश्मनी है। इसके अलावा उनके अंदर जातिगत धर्मगत दुश्मनी भी है। बात होती है बसानियों में और शायलाक में। शायलाक आपकी भाषा में कहूँ, आज की भाषा में कहूँ तो पेचदार व्यक्ति है, घुमाता है, सीधे तैयार नहीं होता है। वो कहता है पैसा मिलना तो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। आजकल आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं, वो उंगलियों का यूज करता है, ब्याज की दर देखता है और कहता पैसा है तो नहीं, लेकिन एक मेरा मित्र है ट्यूबल, वो धनी जीव है, मैं उससे उधार लेके मैनेज कर दूंगा, आपका काम कर दूंगा। लेकिन मैं पैसा देने से पहले मिलना चाहता हूँ श्रीमान एंटोनियो से, कि आप थोड़ी देर मुलाकात करवा देंगे। बसानियो सहमत हो जाता है, बसानियो की ज़रूरत भी है, वो चूँकि बेलमांट जाना चाहता है। ऐसी स्थितियों में एंटोनियो और शायलाक बसानियो स्टेज पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए बीज दिखाई पड़ेंगे, जो नफरत थी दोनों के बीच वो दिखाई पड़ेगी। पूछता है शायलाक कितना पैसा चाहिए? 3000 डुकेट्स। कितने दिन के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए। गारंटी कौन देगा? एंटोनियो देगा। तो क्या मैं एंटोनियो से बात कर लूँ? वो एंटोनियो से बात करता है और सटायर आप कहते हैं, व्यंग कहते हैं, तंज कहते हैं, घुमा कर बात करना कहते हैं, उसका प्रयोग करता है। कहता है श्रीमान जी मैं आपको पैसा दे दूं, क्योंकि पिछले बुधवार को आपने मेरे ऊपर थूका था
आपने रियाल्टो पर मुझे कटहा कुत्ता कहा था। ये स्वाभाविक है कि एंटोनियो को गुस्सा आ जाता है और एंटोनियो कहता है कि इफ यू आर गिविंग मनी, यू आर गिविंग मनी टू योर एनिमी, नॉट टू योर फ्रेंड। मैं तेरे ऊपर फिर थूकूंगा, मैं तुझे फिर कटहा कुत्ता कहूंगा। साइलाक एक कनिंग पॉलिटिशियन है, चालाक व्यक्ति है। साइलाक कहता है आप तो गुस्सा हो गए, आप तो नाराज हो गए, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं तो आपकी दोस्ती पाना चाहता हूँ, मैं आपको पैसा दे दूँगा और केवल आपको ये करना होगा, एक बॉन्ड लिखना होगा। वो बॉन्ड लिखने के लिए आपको नोटरी पर आना पड़ेगा। उस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि 3 महीने के बाद यदि 3000 डुकेट्स निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर अदा न कर दिए गए तो मैं 1 पाउंड गोश्त एंटोनियो की बॉडी से जहाँ से जी चाहे वहाँ से काट लूँगा। एंटोनियो कहता है ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूँगा। नोटरी पहुँचो, पेपर तैयार करवाओ। लेकिन बसानियो कहता है आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं बिना पैसे के चला जाऊँगा। नहीं, वो कहता चिंता मत करो, मेरा पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा, इसके पैसे की मैं कोई चिंता नहीं करता, तुम तैयारी करो। इसको बॉन्ड एपिसोड कहा जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये शुरुआत है, ये प्रारंभ किया गया है इस तरीके से, और यहाँ से आपको लगता है कि एक एपिसोड मैंने आपके सामने रखा है। ये बॉन्ड एपिसोड लॉस्ट तक चलेगा, लास्ट में खुल पाएगा। दरअसल शेक्सपियर में एक बहुत विचित्र कला है कि वो कई कहानियों को एक साथ गूंथ देता है। जैसे बॉन्ड एपिसोड है, उसी तरह कैस्केट एपिसोड है। उसी तरह से रिंग एपिसोड है। और नंबर 4 पर जेसिका लॉरेंजो एपिसोड है। Okay, at first you are going to watch and understand all these things, I hope so. Thanks a lot for listening carefully.